Hello students, today we are going to discuss the chapter number 4 of history, tribal communities. As the English East India Company became the master of India, its rule affected all sections of the society, particularly the tribal groups. These changes were resisted by the tribals. अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ट्राइबल लाइफ कैसे इफेक्ट हुई पूरी, उन पर क्या असर हुआ और इन लोगों ने क्या किया. The tribal way of life. There are many tribal groups in India. Some are Mundas, Santals and Oraons in Chota Nagpur region, Baigas, Gonds and Khonds in central India, Khasis and Nagas in northeast. ये कुछ tribal groups हैं जो इंडिया में मिलते हैं. Now the next topic is society. They do not follow the caste rules laid by the Brahmins. ब्राह्मण्स ने जो कास्ट रूल्स बना रखे थे, जो सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, उसको फॉलो नहीं करते थे. They believe in equality. Land was owned by the whole tribe. Land पूरी ट्राइब का होता था. Each tribal group has its own customs, rituals and beliefs. सब ट्राइबल ग्रुप के अपने customs, rituals और beliefs अलग अलग होते थे. Next is economy. They depended on natural resources in their region. जो आसपास के एरिया में resources उनको मिल जाते थे, उसी पे डिपेंड होकर वो अपनी लाइफ जीते थे. Some tribes settled in an area permanently while others had a nomadic lifestyle. कुछ एक जगह पे सेटल हो जाते थे, कुछ घूमते रहते थे और अपने आप को अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज रखते थे. Shifting cultivation. The tribals in central India and northeast India practiced shifting cultivation. It is also called jhum cultivation or slash and burn cultivation. एक जगह के लैंड से दूसरी जगह पर जाकर के कल्टीवेशन करना, उसको बोला जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन. एंड स्लैश एंड बर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक जगह के पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, वहाँ के ट्रीज़ को बर्न करते हैं, वहाँ कुछ सालों तक एग्रीकल्चर करते हैं, फिर उसको छोड़ करके जब यील्ड कम हो जाती है तो दूसरे लैंड पर चले जाते हैं. They select a patch of land, cut the trees by burning them. They cultivate it for some years. When yield decreases, they leave it and move to new areas. Next is hunting and gathering. They lived by hunting and gathering forest produce. They collected fruits, roots, honey and medicinal herbs. Tribals forest से फ्रूट्स, रूट्स, हनी, कुछ मेडिसिन्स वगैरह कलेक्ट करते थे. अपना खाना, रेगुलर की चीज़ें वो सब इसी से एडजस्ट करते थे. दे कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स और सोल्ड इन द लोकल मार्केट. वो इन चीज़ों को कंज्यूम करते थे या आसपास के मार्केट में सेल आउट कर देते थे. Some exchanged milk products and wool for rice and other grains. कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स और वूल के बदले राइस और कुछ ग्रेन्स एक्सचेंज करते थे. Forest was the only source of firewood for them. When they cannot satisfy their needs, they moved to another forest. जब उस फॉरेस्ट से उनकी नीड सेटिस्फाई नहीं होती थी, वो फॉरेस्ट छोड़कर दूसरे फॉरेस्ट में चले जाते थे. So they were called people of the forest. Next activity is herding and rearing. Some tribal groups lived by herding and rearing animals. वो animals को पालना, उनका ध्यान रखना, उनको rear करने पे डिपेंड करते थे. They depended on herd of sheep or cattle. They were nomads and moved with the animals. When food lasted for animals, they moved to another areas. जब animals के लिए food खत्म हो जाता था, वो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे. Next is settled agriculture. With time, many tribals settled permanently. They begin to grow crops on fields near their houses. Time के साथ साथ कुछ tribals settle होने लगे, उन्हें अपनी fields पर crops उगानी शुरू की. Among some groups, land belonged to the clan, not to the individual. लैंड अकेले का नहीं होता था, पूरी ट्राइब का होता था. इस वजह से जो भी क्रॉप्स उगाते थे वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आपस में शेयर करते थे. इन 19th century, Mundas and Santhal took to settled agriculture in a big way. How did the British rule affect the tribals? Tribal were a close-knit community, lived in isolation and did not encourage outsiders to come into their community. British rule led many changes and their isolation came to an end. ट्राइबल्स आपस में बहुत क्लोज होते थे और बाहर से किसी को भी आना कम्युनिटी में अलाउ नहीं करते थे. ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे चेंजेस किए और इस वजह से उन लोगों की प्राइवेसी ख़त्म हो गई. Tribals dispossessed of their land. The company took over lands cultivated by tribals. Tribal become landless laborers and forced to grow cash crops. They were paid low wages. They resisted loss of land as they were natural owners of land. कंपनी ने ज़बरदस्ती ट्राइबल्स के लैंड ले लिए थे, वो फोर्स लेबर बन गए थे और ज़बरदस्ती कैश क्रॉप्स उगाते थे. कंपनी उनको इस चीज़ के लिए बहुत कम वेजेस पे करती थी और उनने जो लैंड लिया उसका काफ़ी अपोज किया क्योंकि वो लोग अपने आप को नेचुरल ओनर्स मानते थे लैंड के और इस वजह से वो लोग इस चीज़ के अपोजिशन में थे.
नेक्स्ट इज हाई रेवेन्यू डिमांड। द कंपनी डिड नॉट डिप्राइव द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ देयर लैंड। कुछ केसेस में कंपनी ने लैंड्स नहीं लिए, पर ये कंडीशन रखी कि उन लोगों को ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। द रेवेन्यू वॉज वेरी हाई एंड द कलेक्शन मैथड वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था और कलेक्शन मैथड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। इफ़ दे वर अनेबल टू पे, देयर लैंड वॉज टेकन एंड वर मेड फोर्स लेबर। और अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनका लैंड ले लिया जाता था और उनको फोर्स लेबरिंग के लिए लगा दिया जाता था। सेटल्ड एग्रीकल्चर। द कंपनी वांटेड अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। कंपनी एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहती थी। पेस्टोरलिस्ट नाइदर हैड अ परमानेंट होम नॉर अ सेटल्ड ऑक्यूपेशन, so company forced many tribals to become settled agriculturists and pay a fixed revenue to the company। इस वजह से कंपनी यह चाहती थी कि पेस्टोरलिस्ट दैट इज ट्राइबल्स सेटल डाउन हो जाएं, क्रॉप्स उगाएं और कंपनी को फिक्स रेवेन्यू पे करें। The tribals protested as land was not productive or its fertility declined after continuous cultivation। ट्राइबल्स ने इन चीज़ों का प्रोटेस्ट किया क्योंकि या तो प्रोडक्टिविटी कम होती थी या टाइम के साथ फर्टिलिटी कम हो जाती थी, फिर उनकी इनकम नहीं हो पाती थी। Change in forest laws। The company also made changes in the forest laws। It declared forest as state property। कंपनी ने forest laws में भी changes किए, forest को state property declare कर दिया। It put restrictions on collection of forest produce। प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कटिंग ट्रीज, हंटिंग, ये सब चीज़ें उन्होंने बैन कर दी। इन सम पार्ट्स ट्राइबल वर नॉट अलाउड टू लिव इन द फॉरेस्ट। ट्राइबल्स को रोक दिया कि फॉरेस्ट में नहीं रह सकते। इस वजह से ट्राइबल्स ने इसका प्रोटेस्ट किया क्योंकि वो फॉरेस्ट को अपनी प्रॉपर्टी मानते थे। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स। द ट्राइबल्स आर मेनली सेल्फ सफिशिएंट, however for some things depended on outsiders। ट्राइबल्स मेनली सेल्फ सफिशिएंट थे, सारी चीज़ें फॉरेस्ट में ही मिल जाती थी, बस कुछ चीज़ों के लिए बाहर पे डिपेंड करते थे। The traders charge very high prices for the goods from tribals। traders बहुत ज़्यादा high prices लेते थे। The tribals often took loan from money lenders who charged very high interest rate from illiterate tribals, so they were caught in the cycle of debt। जब ट्राइबल्स लोन लेते थे तो मनी लेंडर्स इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगाते थे, फिर ट्राइबल्स वो लोन चुका नहीं पाते थे और साइकिल ऑफ डेट में फंस जाते थे। इस वजह से वो ट्राइबल्स इन लोगों को एविल समझते थे। दे रेसिस्टेड द प्रेजेंस ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स अमंग देम। उनको उनकी प्रेजेंस अपनी सोसाइटी में अब अच्छी नहीं लगती थी। नेक्स्ट इज रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज इंटरफेयर्ड इन रिलीजियस लाइफ ऑफ द ट्राइबल। क्रिश्चियन मिशनरीज वो होती थी जो इन ट्राइबल्स को क्रिश्चियन बनने के लिए हेल्प करती थी, इनको कहती थी कि आप क्रिश्चियन धर्म अपनाओ, तो वो इनकी रिलीजियस लाइफ को अफेक्ट कर रही थी क्योंकि मिशनरीज ये चाहती थी कि वो उनके अकॉर्डिंग काम करे। इस वजह से ट्राइबल्स को इनकी एक्टिविटीज़ पसंद नहीं आई। दे रिसेंटेड द एक्टिविटीज़ ऑफ मिशनरीज। द मेन इफेक्ट वॉज ऑन द ट्राइबल चीफ्स बिकॉज दे लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। अंडर ब्रिटिश रूल दे लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड बिकम द एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश। उनकी सारी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के एजेंट बन गए क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स के सारे लॉ फॉलो करने पड़ते थे, उनको गिफ्ट्स देने पड़ते थे, उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। दे हैड टू फॉलो द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश एंड पे दैम ट्रिब्यूट्स। दिस इन्फ्यूरिएटेड द ट्राइबल्स। और इस वजह से उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई, वो इन्फीरियर हो गए ट्राइबल्स के अंदर। एंड फाइनली वॉज द ट्राइबल रिवॉल्ट्स। There were many revolts during 19th century due to interference in their traditional way of life। बहुत सारे revolts हुए। Some major are the Cold Rebellion of 1831 and 32, the Santals Rebellion of 1855, the Orauns who revolted under the leadership of Jatra Oraon, and the last one was the Munda Rebellion, which was the most widespread and the largest among all these rebellions। Now Munda Rebellion held in Chota Nagpur region led by Birsa Munda। Their head was Birsa Munda। The Ulgulan or the Great Tumult aimed at driving out the British and their agents establishing Munda Raj। उनका मिशन ये था कि वो ब्रिटिशर्स को हटा दे और अपने एरिया में वापस मुंडा राज इस्टेब्लिश करे। बिरसा मुंडा वांटेड टू ब्रिंग बैक द गोल्डन एज ऑफ द मुंडास। वो चाहते थे पुराना वाला टाइम वापस आ जाए। ही वांटेड टू फ्री हिज पीपल। वो चाहते थे उनके लोग फ्री हो जाएं, उनका ऑपरेशन ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, जमींदार्स और ब्रिटिशर्स इन सब का ज़बरदस्ती ख़त्म हो जाए। ही आस्क्ड द ट्राइबल्स टू फोर्सफुली टेक बैक द लैंड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। वो ये चाहते थे कि ट्राइबल्स अपने लैंड वापस ले लें। इट वॉज ऑल्सो अ सोशल मूवमेंट एम्ड एट रिफॉर्मिंग द ट्राइबल सोसाइटी। वो एक सोशल मूवमेंट भी था क्योंकि सोसाइटी को चेंज करने के लिए था। बिरसा वांटेड दैम to leave out the evil practices such as drinking liquor, performing animal sacrifice, worshipping of evil spirits and leading a dishonest life। वो ये सब चीज़ें छोड़ देना चाहता था और वो साथ में क्रिश्चियन मिशनरीज के भी अगेंस्ट में था क्योंकि वो उनके रिलीजियस लाइफ के साथ इंटरफेयर करती थी।
ब्रिटिशर्स केम हेवनली अगेंस्ट द रेबिलियन, वो इसके अगेंस्ट में थे बहुत ज़्यादा। उनने बिरसा को 1895 में अरेस्ट किया, उसको इम्प्रिजन किया और थोड़े टाइम बाद वो मर गया। मूवमेंट तो ख़त्म हो गया पर मुंडास का प्रोटेस्ट अभी भी कंटिन्यूड था। सो दिस वॉज अ चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।